السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ تو میں آ چکی ہوں خمار جانم کی سرپرائز 8 ایپیسوڈ لے کر، جو ہے پرپوزل اسپیشل۔ اور ارمان صاحب کا آپ دیکھیں گے آج تھوڑا بے باک رنگ، تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے کیونکہ یہ بڑھنے والی ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف؟ لیٹ سٹارٹ۔ وہ لوگ تیرا ڈولہ لے کر جانے کی تاریخ لینے آ رہے ہیں اور تجھے اپنی یاری بیلنیوں کی فکر ہے۔ تو کہیں نہیں جا رہی، ٹک کر گھر بیٹھ۔ انیا کا آؤٹنگ کا پلان سنے مہرین بپھری ہوئی اس کے کمرے میں آئی، جو مزے سے کالے جوڑے کے ساتھ میچنگ نیٹ کا دوپٹہ لہرا لہرا کر اپنا جلوہ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ امیاں جان، یار بیلی لڑکوں کے ہوتے ہیں یار، خدا دا خوف کرو، میری تو سہیلیاں اور مکھنیاں ہیں، ویسے بھی بڑی مشکل سے سب کا موڈ بنا ہے، تو میں نہ گئی سب کے تھنے سٹ جائیں گے، سو آپ اور آپ کا ٹبر ہے نا میرے سسرالیوں کو سنبھال لے گا۔ انیا نے بالکل ہی لاپرواہی برتی، تبھی تو مہرین سکتے میں تھی۔ بات سن، تجھے واقعی ارمان سے پیار ویار تھا یا بس ٹھڑک تھے تیرے وہ؟ نانوں کے سوال پر انیا ہونک رہ گئی۔ امیاں جان، میں یہی سوال آپ سے نانا کو لے کر پوچھوں تو؟ انیا کو برا لگا، تے میں چپیڑ مار کے تیرے سارے دن توڑ دوں۔ مہرین تو دہشت گردی پر اتر آئیں، تبھی تو انیا نے منہ بسوڑا۔ ابھی میں ارمان کو اپنی قدر کروانے کے مشن میں ہوں یار، آپ تو سمجھا کریں، وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آسمان سے سیدھی انیا ان کی گودی میں پکے پھل سی آ گری ہے۔ یار آپ تو سب فیس کر چکی ہیں، آپ نے نانا جان کو ساری عمر بہکا کر بس 2 کارنامے کیے، میں 10 تو پکے کروں گی۔ اب یہ کارنامے بچوں کا ذکر تھا، یہ سمجھتے امیا کا دماغ چکرا گیا۔ انیا کی زہریلی مسکراہٹ الگ پارا چڑھا گئی۔ 10 بچے چاہیے تجھے؟ اتنی جان ہے تیرے میں؟ پتا ہے تجھے ایک بچہ بننے سے دنیا میں اس کے آنے تک عورت کتنی تکلیف سہتی ہے؟ باتیں سن لو اس کی پھنے ہان والی، ایک کر کے ہی نا تجھ سی نازک اپسرا نے کان ناک تک توبہ نہ کی نا تو میرا نام مہرین ملک نہیں۔ امیاں جان کی ڈپٹ پر مسکراتی ان سے لاڈ سے لپٹی۔ آپ نے ارمان کو غور سے دیکھا ہے امیاں جان؟ نانا سے 1000 درجے ہینڈسم اور پرکشش ہیں، اب اتنا پیارا اور ڈیشنگ بندہ ہو تو مجھے اپنی تکلیف تھوڑی نہ نظر آئے گی۔ آئی پرومس کم از کم 4 بار تو یہ نوازی آپ کو پر نانی بنائے گی۔ اس لڑکی کی یہ بے باک گفتگو بیچاری نانی کی گال سرخ کر گئی، پر اسے شرم نہ آئی۔ منہ ابھی اس ٹھنڈے فریج نے لگایا نہیں تجھے، اور 4 بچوں کا خیالی پلاؤ اس کا پک کر تیار بھی ہو گیا میرے مالکا۔ یا میرے اللہ مجھے صبر دے، جا دفع ہو جا، تیری ایسی باتیں سن کر کان سے دھوئیں نکلوانے سے بہتر تو اپنی مکھیوں کے پاس ہی چلی جا۔ امیاں جان کی اجازت وہ آفت کی پرکالا ایسے ہی تو لیتی تھی، مکھیوں پر تو اس سمیر نانی جان کی بھی بتی سی کھلڑ کر باہر نکلی۔ مکھیاں نہیں امی جان، امیاں جان مکھنیاں۔ جاتی نانی کو اصلاح کا درس دینے پر ان کی طرف سے لعنت کا اشارہ کھا کر ہی انیا کو سکون ملا، جبکہ ہنستی ہوئی اس سے پہلے وہ فون لیے نکلتی، ارمان کے میسج پر اس سمیت اس کی ساری دنیا رکی۔ بےتابیوں کا جہاں بنے انیا نے فوراً میسج اوپن کیا۔ اگر تم کہیں فرار ہوئی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ انیا نے بار بار آنکھیں مسل کر ملی، پر رزلٹ ایک سا تھا۔ ارمان عرف نانی کے بقول ٹھنڈے فریج نے جان لینے کی ہاٹ بات کی تھی۔ آپ نے کون سا ویڈنگ نائٹ منانی ہے؟ آ کر میرے ساتھ، جو میرا گھر ہونا ضروری ہے۔ انیا یہ والی ہمت میسج پر تو اب ڈنکے کی چوٹ پر کر سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب شاور لیتے ارمان کو اس وقت بھی چین نہیں تھا۔ شاور آف کرے وہ ذرا سائڈ آئے، شیلف سے فون اٹھا کر دیکھتے لمحہ بھر سکتے میں چلا گیا۔ جناب، ایک تو ہولیے میں ایسے تھے کہ آس پاس آگ لگی تھی، دوسرا جب تپتا تھا تو اور جان کو آنے لگتا۔ اس بکواس کے پیسے لیتی ہو یا مفت میں ایسی آلودگی پھیلانا پسند ہے تمہیں؟ ارمان کے سلگتے جواب پر انیا کے گال پھولے۔ آلودہ ہوں گے آپ؟ چڑ کر غصے والے 10 ایموجیز کے ساتھ جواب دیا، جس پر کچھ لمحے میں ارمان نے اپنی سیلفی بھیجی، جس میں ٹاول گردن میں لٹکائے وہ غصے والے پوز میں بھیگے بھیگے ہولیے میں نظر آتے ہی انیا کی سٹی گم کر گیا۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو انیا کا دل باہر آیا کہ اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو، پر اس سے بڑا صدمہ ارمان کو اسے نہانے کے بعد دیکھنے کا تھا، اور ظالم نے تو جی بھر کر دیکھنے بھی نہ دینا تھا، بس یہ لومڑی کو قابو کرنے کی ایک مشکل کوشش تھی۔ خیر، جھک کر انیا نے اپنے بکھرے حواس سنبھالتے فون اٹھایا تو وہ انیا کی طرح ڈیٹ تھا، ٹوٹا ہی نہیں۔ تم سے کہیں زیادہ صاف ستھرا ہوں۔ پکچر ڈیلیٹ کر دی گئی، کیونکہ یہ کر کے ارمان کو کافی برا بھی لگا اور عجیب سی فیلنگ بھی آئی کہ کیسی کرنج حرکت کر بیٹھا ہے، پر وہ جانتا نہیں تھا اس کے انٹروورٹ ہونے کی یہ لڑکی دھجیاں بکھیرنا شروع ہو چکی تھی۔ انیا کا دل چاہا جا کر ارمان کے بال نوچ لے اس حرکت پر۔ پکچر کیوں ڈیلیٹ کی؟ جب اتنی بے شرمی سرزد ہو ہی گئی تھی تو قائم رہتے نا، ڈرپوک کہیں کے۔ میں نے تو دیکھی بھی نہیں تھی، میں کیسے معلوم آپ صاف ستھرے ہیں؟
अनिया भी किसी से कम ना थी। अरमान को चैलेंज किया था जो रूम में आ चुका था, अभी भी शर्ट लेस ही था। कहो तो सर से पैर तक बेच दो पिक्चर अपने साफ सुथरे होने का सबूत देने के लिए। अरमान के अगले मैसेज पर अनिया की टांगें कब आ गईं। जल्दी से फोन मैट्रेस पर फेंका जैसे वो सच में भेज देगा। जबकि अरमान ने फिर से अपने भेजे मैसेज पर लाहौल पड़ा। समझ ना आया ये कैसी बात कर गया है, लेकिन अब डिलीट करता तो रोब कम हो जाता। इनमें कौन सा थर्ड क्लास इमरान हाशमी गुस्सा आया, या अल्लाह मैं किसी सस्ते नशे के असर में तो नहीं। अनिया ने अपने दोनों गाल मद्दम थप्पड़ों से थपके पर होश में ही थी। और तभी तो ज्यादा परेशानी हुई। क्या पी रखी है? डरते डरते अनिया ने मैसेज टाइप किया और आधे मैट्रेस पर हावी होती लाम लेट हुई। अरमान अपनी कबर्ड से डार्क ब्राउन शर्ट निकालता मुस्कुराया। अगर तुम कहीं गई आज तो तुम्हें पी और खाद दोनों जाऊंगा बिना किसी को खबर हुए। अरमान ने बात ही समेट दी, जबकि अनिया ने जल्दी से चैट डिलीट की और मुस्कुराती हुई फोन लेती कमरे से निकली, क्योंकि उसकी दोस्तें उसे पिक करने आ चुकी थी। अब मुझे इंतजार है आपके मुझे खाने और पीने का, मैं तो चली। घर से निकलती अनिया इस वक्त चलता फिरता शोला ही महसूस हुई, ऐसा जो अरमान के जज्बात भड़काने की पूरी तैयारी में लग चुकी थी। मलिक हवेली के मेहमान अभी तक हवेली में मौजूद थे और शाम अरमान, शाज़मा, फायजा और जाले की आमद रुखसती की मतवक्का बात पर हर कोई आमादा ही था, क्योंकि कार्ड्स तकसीम होने की वजह से खानदान और बरादरी में काफ़ी बातें हो रही थी। और जब जिशान ने सबसे इन लोगों के आने से पहले बात की कि आज अरमान की फैमिली रुखसती के लिए आ रही है, तो सबको कहीं ना कहीं तसल्ली मिली। अनिया अपने कहे कि पक्की जब से यूनी से आई थी अपनी दोस्तों के साथ निकली थी, और अमिया जान के लाख मना करने के बावजूद अभी तक ना लौटी थी। अरमान के अताब को वो दहका चुकी थी और अब अरमान से बचना मुश्किल था। सिटिंग लाउंज सारा अफराद-ए-खाना से भरा था, जबकि बच्चों ने भी उधम मचा रखा था, जिनको हैंडल करने की जिम्मेदारी बेचारे ज़ीशान पर थोपी गई थी। इसे बच्चे अच्छे लगते थे, पर इन घर की आफतों से वो नाक तक आजिज़ आया महसूस हो रहा था। चूंकि डिनर की तैयारी हो रही थी, तो हाला कुक के संग तैयारियों में लगी थी और जिशान ने सब बच्चा पार्टी को अपने रूम में घुसाकर अपनी वीडियो गेम चलाने की परमिशन देकर काबू कर रखा था। दो बच्चे अनिया के बड़े भाई फाहद के थे, बलाल और मूना, जबकि जिशान के भाई और बहन दोनों की अभी एक ही औलाद थी, हिरा की बेटी मदीहा और अनान का बेटा रायान। मतलब कुल मिलाकर चार आफत किस्म के बच्चों ने बेचारे जिशान के कमरे को उजरा खंडर बना रखा था। साले लाउंज में सब बड़ों की बातों से बोर हुई, क्योंकि वो सब बस 4 दिन बाद रुखसती की डेट और तैयारियों की गुफ्तगू कर रहे थे। तभी वो रेस्ट रूम यूज करने के बहाने वहां से उठ गई। किचन का रुख किया तो हाला नामी जिशान और अनिया की बुआ ने निसार निगाहों से अनिया को किचन में बुलाया। किचन अपनी तर्ज की लाउंज की शक्ल में था और हर तरफ से खुशबुओं के झोंके उठ रहे थे। तुम तो बहुत ही प्यारी हो गई मेरा बच्चा, कोरिया रास आ गया हमारे बच्चे को। बुआ ने बादाम वाली रस मलाई डाल कर दी, जिससे जाले ने फौरन थामा, क्योंकि वो ज्यादा मजेदार लग रही थी। कोरिया का पता नहीं, मामू बहुत रास आए, आप बताएं कैसी हैं। जाले ने वो स्वीट डिश यूं किचन में आकर पहले ही हथियाई, तो इस पर इसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अपनी बोरियत हमेशा मीठा खाकर भगाती थी। मैं बिल्कुल मजे में। नादिया पुत्र, पहले ये सैंडविच जरा जीशु के कमरे में पहुंचा, ताकि इस बच्चा पार्टी का रोला कम हो। मेरा पुत्र इन रोलों को चुप कराकर अब बावला हो जाएगा। नादिया नामी कुक अपने काम में बहुत मसरूफ थी, तभी जाले ने फौरन से उठते ट्रे थामी। मैं दे आती हूँ, वैसे भी बोर हो रही हूँ, उसे डांट दें। मैं दे आती हूँ, वैसे भी बोर हो रही हूँ, इसे डांट दे, मैं आकर खाती हूँ, ये बहुत यम्मी है। जाले ने तो दोनों का काम आसान कर दिया था। हाला ने शफकत भरी स्माइल दी। ठीक है मेरा बच्चा, हाला कहकर खुद भी काम लगी, तो जाले वो सैंडविच ट्रे जिसमें 4 अदद ब्रांडेड जूसेस पैक भी थे लिए जिशान के कमरे की तरफ बढ़ी। पास जाते ही बच्चों की आवाजें सुने वो मुस्कुराती हुई पैर से दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई। सबको हाय। जाले को देखते वो चारों बच्चे जरा वीडियो गेम से सर निकालकर उसकी तरफ देखने लगे, और फिर सबने ही मुस्कुराकर जाले के हाय का जवाब दिया, जो मुस्कुराती हुई करीब आकर ट्रे मेज पर रखे वापस उठी। तुम सबके लिए सैंडविच विद जूस लाओ, जॉयस्टिक मुझे थमाओ, तब तक तुम अपने सैंडविच फिनिश करो। जाले की सब बच्चों ने फौरन मानी, जिस पर जाले जॉयस्टिक लेकर वहीं सिटिंग कुशन पर आलती पालती मारे बैठी ही कि दूसरा कंट्रोल जिशान ने आकर संभालते जब उसके साथ ही बैठकर कंधा मस किया, तो जाले ने घबराकर गर्दन मोड़ी। चारों बच्चे अपने अपने सैंडविच और जूस को पकड़े दोनों के कंधों पर झूल आए, क्योंकि अब स्क्रीन पर 2 गाड़ियां थी और रेस होने वाली थी। तो गाइस, आपके मामू और चाचू को हरा दूं क्या? जाले ने खूब में मुस्कुराते चारों बाशिंदों को देखकर अपनी घबराहट पर महारत से काबू पाया, तो चारों ने एक साथ हुटिंग की।
खुश फहमी, इस गेम में जिशान मलिक प्रो है। जिशान ने फखरिया कॉलर झाड़े तो जाले मजीद पुरजोश हुई। हाँ तो देख लेते हैं अभी, क्यों बच्चों। जाले ने अपने कंट्रोल संभालते चारों की तरफ देखा तो वो सब बेचारे जिशान को छोड़े जाले के लिए हूटिंग करने लगे। और जिशान को जिंदगी में पहली बार ऐसी तोता चश्मी पर अजीब सी राहत हुई। खैर गेम स्टार्ट हुई और जाले ने सच में इतनी प्रोफेशनली गाड़ी चलाई कि खुद जिशान को लगा प्रो वो नहीं, ये लड़की है। दूसरा चार शैतानी बच्चों का क्राउड भी तो आज जाले की तरफ था। वैसे तुमने नोट किया है, जिशान मध्यम सा जाले के कान में बोला तो वो हैरत से मुस्कुराई। क्या? इसने भी सरगोशी में ही पूछा। तुम मेरे रूम में पहली बार आई हो। जिशान के इस जुमले पर जाले की घबराहट के मारे जॉयस्टिक पर कंट्रोल ढीला पड़ा और स्पीड में आती गाड़ी बुरी तरह ठोकर पर उल्टी तो जनाब जिशान पास से शूं करके गुजरे। जाले ने गर्दन घुमाकर इस चीटर को देखा जिसके चेहरे पर फतह मंदाना शरारत थी, जबकि चारों बच्चे भी अब लीड करते जिशान के लिए हूटिंग कर रहे थे। आप एक नंबर के चीटर हैं। दोबारा से अपनी रिपेयर गाड़ी को ट्रैक पर डाले। जाले ने बुरी तरह मुंह बसोड़ा। जिशान की आंखें उसके साथ मुस्कुराईं। तुम आओ ना, ईमानदारी सिखा दो। आई नीड अ टीचर लाइक यू। एक तो वो बार बार कंधे से टच होता, दूसरा उसकी सरगोशियां जाले को अनकंफर्टेबल कर रही थी। मैं खुद भी चीटिंग कर लेती हूँ कभी कभी, सो आप सच में किसी ईमानदार को ढूंढे। जाले ने बात ही समेट दी, जबकि जिशान इससे अब भी जीत रहा था। और जाले की गाड़ी बार बार ट्रैक से निकल रही थी, जो उसकी घबराहट में होने की निशानी थी। तुमने सुबह जो कहा, इससे पहले जिशान वो सब दोहराता, वो भी यूं बच्चों के बीच, वो ऊहू किए रोक गई। वक्त मुनासिब नहीं। वो रसान से रोक गई तो वो फिर से कान की ओर झुका। कहो तो इन चारों को चलता करूं। जाले ने जॉयस्टिक पर इस बार बिल्कुल कंट्रोल खोया तो गाड़ी इस बार बुरी तरह क्रैश होते होते बची। जिशान ने जाले के कांपते हाथ फील किए तो दूर हुआ और कंधा भी अलग कर लिया। आई एम डन, कौन खेलेगा। जाले ने जॉयस्टिक पीछे को लहराई तो मोना ने जल्दी से उचकी और आगे आकर बैठी तो बाकी तीन भी साथ आ जमे। जाले जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो जिशान ने भी अपनी जॉयस्टिक रायान को थमाई और जाले की तरफ लपकता उसका हाथ पकड़े रूम से मुल्हिक कर टेरेस पर ले गया। जाले ने उसके हाथ पकड़ने पर बुरी तरह हफा होते अपने हाथ को छुड़वाया, मगर तब तक वो ठंडे टेरेस के किनारे आ चुके थे। दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मसला क्या है आपका। वो सख्त गुस्सा थी, लेकिन जिशान बिल्कुल पुरसकून था। मैं जो हो सका तुम्हारे लिए करूंगा, आई प्रॉमिस। जाले ने सर झटकर नजरें ताहद निगाह फैली शाम पर जमाई। और इस जो में क्या क्या शामिल है। वो गैर मरई नुक्तों को खोजती बोली। इतनी लाताल्लुक थी नहीं जितनी लग रही थी। ओ वो जो तुम सोच भी नहीं सकती। वो इसे गर्दन घुमाकर देखते अजीज से हंसी। आपको पता नहीं है कि मेरी सोच के लेवल क्या हैं, तो ये मत कहें। मैं बहुत कुछ ऐसा सोच सकती हूँ जो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। वो इसे चैलेंज कर रही थी। वो मुबहिम सा मुस्कुराया। खुशबाश आदमी और दुखी सी लड़की, कहते हैं ये परफेक्ट कपल बनता है। उसकी शरारत भरी जताने की गुस्ताखी पर घूरी। मैं दुखी नहीं हूँ। वो अपना दिफा गलत बंदे के आगे कर बैठी। नहीं रहोगी। न जाने क्या था जिशान के इन तीन जताते लफ्जों में कि जाले इस पर से नजरें न हटा सकी। मैं सबके पास जाती हूँ। वो कुछ समझ ना पाते पलटी, पर कब में पहले सन्नाटे पर रुक गई, क्योंकि अक्सर कहर सन्नाटों के बाद ही बर्पा होते हैं। तुम सबके पास चली भी जाओ, मुझसे दूर नहीं जा सकोगी अब। जाले की रीढ़ की हड्डी तक सनसनी उतरी। वो गहरे अल्फाज को समझती थी और इस जुमले से जिशान ने से भरपूर जकड़ने की कोशिश की थी। आप किस इससे इससे पहले वो पलटकर कुछ कहती, वो सोच से ज्यादा नजदीक आ रुका। मैं तुमसे किसके लिए शादी नहीं करूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। जब तक तुम खुद ना चाहो हमारे बीच कोई कुर्बत नहीं आएगी। और तुम्हारे साथ कोरिया जाकर बस ना, तो मेरे लिए वाकई नामुमकिन है, लेकिन नेक्स्ट वीक तुम्हें खुद लेकर जा सकता हूँ। अगर तुम मुझे एज अ हस्बैंड कबूल करती हो, तुम्हारे एग्जाम्स के बीच मैं तुम्हें अच्छी कंपनी दे सकता हूँ। मेरे जोक्स मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फेमस हैं, और एग्जाम्स वो भी मेडिकल फील्ड के कितने बोरिंग हैं मुझे पता है। उसकी हर हर लफ्ज़ पर सुन होती गई, जैसे कोई लफ्ज़ ना बचा हो, कोई रद्द-ए-अमल बाकी ना हो। बस हफीफ सी आंखें धुंधलाई। आप ये सब हमदर्दी में करेंगे। वो रूहानी हुई जितनी भी बड़ी बन जाती थी तो मासूम सी। मैं ये सब अभी खुशी में करूंगा। वो मुतजस्सिस और बेकरार थी। और बाद में साले का सवाल उसकी तरह दिलचस्प था। बात की बाद में देखेंगे। कहो तो नीचे चलकर एंगेजमेंट का रोला डालूं। वो बुरी आंखें मुस्कुराकर मुस्कुराहट देने में कामयाब थी।
वो बुरी आंखें मुस्कुराकर मुस्कुराहट देने में कामयाब थी। नहीं, वो एकदम ही सारी खुशी छिन जाने पर संजीदा हुआ। अगर मुझे आपके जोक्स पसंद ना आए तो मैं आपको कोरिया से निकलवा भी सकती हूँ। जाले ने पलट कर कहा तो जिशान उसके लहजे की आमादगी पर मुस्कुराया और उसको पकड़कर अपने सामने किया तो जाले के चेहरे के रंग से उड़े। तुम्हारा पल्लू पकड़ लूंगा ताकि तुम साथ निकलो मेरे, जहां से भी निकाला जाऊं। ये दरबदरी तुम मेरे साथ बांटो। वो डीठ हद तक जिद्दी था। जाले ने नजरें झुका ली। मैंने लाला से कुछ मनवाना है आपसे शादी करने के बदले। चूंकि नजरों से ही वो बेबसी से मिनमिनाई। क्या? जिशान को शदीद तजस्सुस हुआ। फॉरहेड किस और हग। वो बोली तो आवाज सी कांपी। ठीक है, मनवा लो, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। जिशान ने उसकी थोड़ी पकड़े चेहरा उठाया तो वो आंसुओं को बमुश्किल संभाल रही थी। आप इनसे कहें कि आप मेरे बिना मर जाएंगे, थोड़ा प्रेशर डालें। बाकी मैं डालती हूँ, वरना लाला के पास कई अल्टरनेट तरीके आ जाएंगे ना कि उंगली टेढ़ी करके निकालने के। ये सब कहे वो हिचकिचा रही थी और जिशान मन ही मन में जाले का मजीद दीवाना हो रहा था। क्या पता तुम्हारे बिना वाकई मर जाऊं। जाले की आंखें धुंधलाई। वो मजाक ही समझे पर यह मजाक थोड़ा दिल दहलाने वाला था। ये मुमकिन नहीं। वो नजरें फेर गई। तुम अरमान को अल्टरनेट तरीका ढूंढने दो, मैं तुम्हारा माथा चूम कर गले लगाऊंगा। वो नफी में गर्दन घुमा गई। आंखें भीगी थीं। मुझे ये आपसे तो नहीं चाहिए। वो सादगी से घुटी आवाज में समझा गई और जिशान कितनी देर कुछ बोल ना सका। जब तुम मेरी तरफ से ये एक्सपीरियंस करोगी तो तुम्हारी सोच जरूर बदलेगी। बाकी मैं अरमान पर पूरा प्रेशर डालता हूँ, इसलिए रोने की कोशिश मत करना। उसकी धमकाना टोन पर आंसू आंखों में वापस उतार गई। तभी तो उसकी खूबसूरत आंखें लाल लाल हो गई। अगर लाला ने ये कर दिया तो मैं आपसे खुशी के साथ शादी करूंगी। साले कुछ देर बाद बोलने की हिम्मत की। वो नर्म मुस्कुराया। और ना किया तो? जीशान के लहजे में बेकरारी थी। तो दुख के साथ करूंगी कि कोई फायदा तो हुआ ही नहीं शादी का। वो मुंह फुलाकर इस दर्जा साफ गोई से कह बैठी कि जिशान अपनी इस कदर बेकदरी पर थम गया। चलो, हर सूरत तुम शादी करने पर तो आमादा हुई, काफी है। वो इसमें भी अपने मतलब का पहलू निकाल लाया तो जाले की घबराहट बढ़ी। और इससे पहले वो जाती जिशान ने उसका हाथ फिर से यूं पकड़ा कि जाले उसके हाथ के कवी नर्म और मजबूत लम्स पर हैरत से उसके हाथ को देखने के बाद जिशान को देखने लगी। तुम्हें पता है तुम मुझे अपना हमदर्द ना सही राजदान बना चुकी हो। जिशान के इन अल्फाज की तमाजत के बदले वो बदहवास सी हुई। कि कैसे? वो हकलाई। अपने बहुत से सीक्रेट बिना बताकर, कुछ सुबह और कुछ अभी। सो तुम अब मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती जिंदगी भर। वो आखिरी हरफों पर सहमी। जिंदगी भर साथ कौन चलता है? जैसे लोग बूढ़े होते हैं, ताल्लुक की भी ऐसे ही उम्र बढ़ती है और वो बस सीधा हो जाते हैं। वो जिशान को ऐसी बातों से हिला देती थी। तुम्हारे मफरूज़े सोचें, ख्यालात और यकीन सब बदलूंगा। साथ चलने वाले कहने से ज़्यादा करने पर यकीन रखते हैं। तुमने भी जिशान हैदर मलिक को रियल देखा ही कहाँ है? मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। बहुत के लिए इतराता अच्छा लगता है, जैसे सच में कोई तो बात होगी उसमें। मुझसे शादी करने के बाद आप किसी लड़की को छू दूर देख भी नहीं सकेंगे। तो अभी भी भागकर बच निकलने का चांस है। बाद में ये बोरियत का जहां ही दिखाई देगा। फिर आपके अंदर जो लड़कियों के लिए क्रेविंग होगी इसे मिटाने वाला भी कोई ना होगा। वो धमकाने पर उतर आई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना अटैच हुई नारी गरी लड़कियों से कि उनकी क्रेविंग होगी? वो जिशान के संजीदा सवाल पर कंधे उचकाकर मासूमियत का जहां लगी। कल आपने ही अपने करतूत बताए, गला फाड़ फाड़ कर। वो चिंगारी थी चलती फिरती। मेरे हाथों को देख, मैं जस्ट एक मॉडल हूँ, हम साथ रैंप वॉक करते हैं, इश्क माशूकी नहीं। खैर, मैं भी किसे सफाइयाँ देने बैठ गया। जिशान ने खुद ही हाथ जोड़ते हार मानी। पर आप तो खड़े हैं, अच्छे से बैठकर सफाई दें, क्योंकि आपका टेरेस काफी धूल मट्टी से अटा है। मैं तो चली। मजे से कहे वो पलट कर रूम की तरफ बढ़ी कि जिशान के पुकारने पर दबा दबा मुस्कुराती रुकी। विल यू मैरी मी लिटिल गर्ल? वो इसी विल यू मैरी मी लिटिल गर्ल वो इसी मुस्कुराते अंदाज में पलटी जहां जिशान कैक्टस का छोटा सा गमला लिए प्रपोज कर रहा था। वो बेख्तियार हंसी। पहले इसकी जगह ब्लैक रोज लाएं, फिर प्रॉपर जवाब दूंगी, कहकर वो कमरे से होती बच्चों को बाय करे चली गई। और जिशान अपने हाथ में कांटेदार कैक्टस को देखे खुद ही हंस पड़ा। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको नेक्स्ट निकाह स्पेशल? कर ली जाए तो अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे तो ये निकाह स्पेशल आएगी। आज के एपिसोड में बेस्ट इन और बेस्ट डायलॉग कैसे लगा और सरप्राइज एपिसोड कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।